Hello and welcome everyone. I'm Santosh Baliga. This video will be the concluding part of the chapter Law of Torts for CS Executive. See the types of torts or wrongs to personal safety and freedom. There are around 8 types given over here. First is battery, second is assault, third is bodily harm, false imprisonment, malicious prosecution, nervous shock, defamation, and negligence. All these are the kinds of tort. Mostly these kinds of torts are for personal safety and freedom. So battery basically means, let us go into it one by one. So battery, any direct application of force without his consent or lawful justification. This is very important. There should not be any lawful justification. Like say if any person has come to my property, okay, which he is prohibited from coming. Trespassers are prohibited from coming into my property. If somebody comes to evict him from this property, I can use reasonable force. That is not battery because there is a lawful justification in that case. But if somebody applies any kind of force, direct force on a person, okay, without his consent and without any lawful justification, then in that case you will call it as an battery. To constitute a tort of battery, there are two things that are necessary as per this module. First is use of force should be there, and second is without any lawful justification. Use of force, now it is not necessary that the person uses all his strength to push a particular person. It may be a gentle push also. It might be an trivial push also. However trivial it may be without the plaintiff's consent, then in that case we will call it as battery. So even though the force used is very trivial and does not cause any harm, the wrong is committed. Okay, so even अगर मैंने किसी पर्सन को एक पुश कर दिया, लाइन में सब लोग खड़े और लाइन से मैंने एक पर्सन को क्या कर दिया, पुश कर, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज़ का और मैंने उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो लेकिन कुछ हार्म हुआ क्या उसे, कोई हार्म एज सच नहीं हुआ, इट इज़ अ जेंटल पुश दैट आई हैव डन, तो देन ऑल्सो इट विल बी बैटरी. एक रॉन्ग कमिट हो चुका है उस केस में, उस रॉन्ग का नाम क्या है, बैटरी. Thus, even to touch a person in anger or without any lawful justification is battery. मुझे गुस्सा आया तो मेरे को जो पर्सन मेरे को इधर आया मुझे संभालने के लिए, मुझे बोलने के लिए कि भाई मत गुस्सा हो, मैंने उसे ही धक्का दे दिया, मैंने उसे ही गुस्से में क्या कर दिया, धक्का दे दिया, तो ये उसको एज सच कोई हार्म नहीं हुआ, मैंने सिर्फ धक्का दिया उसको, वो भी क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा. ठीक है. सो बैटरी में इतना ज़रूरी नहीं कि आपका फोर्स कितना फोर्स है, क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से आपने यूज़ किया है, क्या सामने वालों को हार्म पहुंचा है, वो सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है. खाली दो ही कंडीशन से यहाँ पे मीट करना है. पहला कंडीशन क्या है, यूज़ ऑफ फोर्स होना चाहिए इन एनी टाइप ऑफ फोर्स, एंड सेकेंड इज विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए. ओके, दैट इज बैटरी. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए इंसाइट्स अ बुल टू स्प्रिंग अपॉन जेड और जी विदाउट जीज कॉन्सेंट. एक जो बुल है, बैल है, बैल को क्या कर दिया उसने, इंसाइट कर दिया ताकि वो क्या करे, बैल जाके जेड के ऊपर जेड को इंजुरी कॉज करे. सो इफ ए इंटेंड्स टू कॉज इंजुरी, फियर और अनॉयंस टू जी, ही यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जी एंड हैज़ देयरबाय कमिटेड द एक्ट ऑफ बैटरी. सो इसमें डिफेंस क्या हो सकता है, बैटरी के अगेंस्ट डिफेंस क्या हो सकता है. एक हो सकता है कि भाई टचिंग अ पर्सन विथ नॉट मोर देन रीजनेबल फोर्स इज नॉट बैटरी. रीजनेबल फोर्स मतलब क्या, यू कैन एक्सप्लेन इट. जैसे मैंने ट्रेसपासर का बताया, दैट इज़ फ्रॉम द केस लॉ का नाम क्या है, वो सीताराम वर्सेस जसवंत सिंह. इट वॉज हेल्ड दैट एन ऑक्यूपायर इज एंटाइटल्ड टू एक्सपेल अ ट्रेसपासर and if necessary even forcibly remove him from the premises, but the force exercised should be reasonable and not greater than necessary, quite disproportionate to the evil to be prevented. Okay, so this is basically an case law सीताराम वर्सेस जसवंत सिंह. सो ये बैटरी का पार्ट था हमारा. बैटरी का डिफेंस क्या है, डिफेंस ये है कि नॉट मोर देन रीजनेबल फोर्स यूज़ किया रहेगा तो वो एक डिफेंस करके यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है, और लॉफुल जस्टिफिकेशन होगा तो भी वो डिफेंस हो जाएगा. अब नेक्स्ट है असॉल्ट. असॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डराता है, अपना फिस्ट ऐसा दिखा दिया कि मैं अभी मारने वाला हूँ, मैं तुझे मारूंगा, ऐसा मतलब ही, और या नाइफ लेके तुम्हारी तरफ बढ़ता है,
व्हाट इज इट? इट इज़ बेसिकली एन असॉल्ट, बिकॉज वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, सामने वाले के माइंड में एक एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो, एक फियर क्रिएट कर रहे हो, एक डर क्रिएट कर रहे हो। और अगर वो पर्सन को डर लग गया कि भाई ये मेरे साथ क्या करने वाला है, बैटरी करने वाला है या कोई बॉडीली हार्म करने वाला है मुझे, इन दैट केस सच काइंड ऑफ एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द पर्सन इज ऑल्सो नोन एज असॉल्ट। सो असॉल्ट में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे कि आप थ्रेटनिंग कर रहे हो सामने वाले पर्सन को, या एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो, एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो। सो देखो, डायरेक्टली कॉजेज द प्लेंटिफ इमीडिएटली टू एप्रीहेंड ए कॉन्टैक्ट विथ हिज पर्सन, ओके, creates an apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit battery against him. The tort of assault is committed. क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट भी, असॉल्ट वाला पार्ट भी। द लॉ ऑफ असॉल्ट इज सब्सटेंशियली द सेम एज दैट ऑफ बैटरी। तो सब्सटेंशियली इट इज़ द सेम, लेकिन यहाँ पे क्या, एक्सेप्ट दैट द एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट नॉट द कॉन्टैक्ट इटसेल्फ हैज़ बीन एस्टेब्लिश। तो बैटरी में क्या किया है, बैटरी में एक्चुअली में आपने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, फोर्स यूज़ कर लिया, तो आपने एक्चुअली बॉडीली टच किया है वहाँ पर किसी ना किसी पर्सन को। यहाँ पे असॉल्ट में आपने एक्चुअली बॉडीली टच किया नहीं है, उस पर्सन को कोई हार्म एक्चुअल में नहीं हुआ है, लेकिन खाली एक एप्रीहेंशन क्रिएट हो गया, एक डर क्रिएट हो गया, एक फियर क्रिएट हो गया कि आप क्या करने वाले हो, अभी आप ये बैटरी करने वाले हो या आप एक बॉडीली हार्म करने वाले हो। ओके, यूजुअली व्हेन देयर इज अ बैटरी देयर विल बी ऑल्सो बी असॉल्ट, बट not for instance when a person is hit from behind. To point a loaded gun at a plaintiff, or to shake fist under his nose, or to curse him in a threatening manner, or to aim a blow at him which is intercepted, or to surround him with the display of force is to assault him clearly if the defendant by his act intends to commit a battery and the plaintiff apprehends it, it is an assault. सो असॉल्ट समझ में आया। जैसे कोई पर्सन अगर लोडेड गन तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है, इन दैट केस उसको भी हम लोग असॉल्ट करके बोलेंगे। अगर वो उसका जो फिस्ट है वो क्या करता है, शेक करता है और तुम्हारे नाक के नीचे लेके जाता है, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, असॉल्ट बोलेंगे। कोई आपको इस तरीके से गाली दे रहा है, इस गुस्से में गाली दे रहा है कि वो अभी आपको आके मारने ही वाला है, तो वो भी क्या हो जाएगा, असॉल्ट हो जाएगा। तो दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ असॉल्ट्स। तो असॉल्ट क्लियर हो गया है। सो ए शेक्स हिज फिस्ट एट जी intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed an assault. तो ये हो गया असॉल्ट वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बॉडीली हार्म। बॉडीली हार्म मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्चुअली आपने उसको क्या कर दिया है, एक फिजिकल हार्म कॉज किया है। देखो बैटरी में आप फिजिकल हार्म हो या नहीं हो, आपने क्या कर दिया, उसको एक फोर्स यूज़ किया, तो इन दैट केस वो क्या बन गया, बैटरी बन गया। आपने किसी पर्सन को थ्रेटन कर दिया या एप्रीहेंशन क्रिएट कर दिया, तो वो बन गया असॉल्ट बन गया। लेकिन बॉडीली हार्म में क्या करते हो आप, एक्चुअली में कॉज फिजिकल हार्म टू द प्लेंटिफ एंड इनफैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज ए टॉर्ट। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जी इज राइडिंग ए चैरियट, ए लैशेस जीज हॉर्सेस एंड देयर बाय कॉसेस देम टू क्विकन देयर पेस। हियर ए हैज कॉज्ड चेंज ऑफ मोशन टू जी by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has committed a criminal force to Z with an intention to cause bodily harm. तो ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। दिस वॉज बॉडीली हार्म। तो आपको ये फर्स्ट 3 पार्ट्स क्लियर हो चुका है क्या? पहला वाला कौन सा था, बैटरी था, सेकंड वन वाज असॉल्ट एंड द थर्ड वन वाज बॉडीली हार्म। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो टॉर्ट है वो कौन सा है, वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वाला। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या, आपने किसी भी पर्सन को क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया इनटू सम लिमिट्स और सम बाउंड्रीज, ठीक है, और उसको क्या कर दिया आपने, इसके बाउंड्रीज के बाहर जाने को आप अलाउ नहीं कर रहे हो। मतलब आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसका पर्सनल लिबर्टी को आपने क्या कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, पर्सनल लिबर्टी को आपने इन्फ्रिंज कर दिया। ओके, और ऐसा जब भी आप ऐसा पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी आपके पास क्या है, नहीं है। लॉफुल जस्टिफिकेशन भी आपके पास नहीं है। तो चलो ये वर्डिंग्स हम लोग पढ़ते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंसिस्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड हाउएवर शॉर्ट
upon the liberty of another, okay, without sufficient lawful justification, without sufficient lawful justification. और क्या बोलता है? It means unauthorized restraint on a person's body. It means unauthorized restraint on a person's body. What happens in false imprisonment is that a person is confined within the certain limits, confined within certain limits, so that he cannot move above, and so his liberty, personal liberty, is infringed. It is a serious violation of a person's right and liberty, whether by being confined within the four walls or being prevented from leaving a place where he is. If a man is restrained by threat of force from leaving his own house or open field, there is false imprisonment. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में बेसिकली आपने क्या किया? एक पर्सन को आपने एक जगह पे कन्फाइन कर दिया, उसको वहाँ से निकलने को आप नहीं दे रहे हो, और आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि उसको कन्फाइन करने के लिए. ओके, तो दैट इज़ नोन एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा? मलिशियस प्रोसिक्यूशन. मलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब क्या? कोई एक पर्सन है जिसका दूसरे पर्सन के ऊपर क्या है, कोई बायस है या कोई नफरत है या समथिंग है, जिसके लिए वो क्या करता है? मेलिशियसली वो एक प्रोसिक्यूशन लेके आता है, जानबूझ के वो क्या करता है? एक केस लेके आता है उस पर्सन के ऊपर, और वो केस झूठा केस होता है बेसिकली, और सामने वाला पर्सन क्या कर देता है? सामने वाला पर्सन उस खुद को डिफेंड कर लेता है. जब वो उसको डिफेंड कर लेता है तो वो क्या कर सकता है? वो एक टॉर्शियस लाइबिलिटी वाला केस लेके आ सकता है ऑन दी ओरिजिनल प्लेंटिफ, कि इसने क्या किया? मेरे ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया था. ठीक है, तो देखो, इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अनदर मेलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज. कोई कॉज नहीं था, आपने क्या कर दिया? झूठा केस कर दिया किसी के ऊपर, विच रिजल्ट्स इन डैमेज और टू हिज रेपुटेशन, पर्सनल फ्रीडम और प्रॉपर्टी. तो वो पर्सन ने तो खुद को डिफेंड कर लिया, वो इनोसेंट करके साबित भी हो गया, लेकिन उसका जो रेपुटेशन था वो क्या हो गया यहाँ पे? वो बेसिकली दैट गॉट डैमेज्ड. ठीक है, तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट. प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? समझो, ए ने बी के ऊपर क्या कर दिया था? ए ने बी के ऊपर क्या कर दिया? प्रोसिक्यूशन कर दिया. प्रोसिक्यूशन कर दिया मतलब एक फॉल्स केस लगा दिया, फॉल्स केस लगा दिया. तो यहाँ पे ए क्या बन गया? ए बन गया प्लेंटिफ. बी कौन बन गया यहाँ पे? डिफेंडेंट बन गया. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है? बी के ऊपर फॉल्स केस लगाया था. बी ने ये फॉल्स केस लगाया, इसलिए ए के ऊपर क्या कर दिया? अभी टॉर्शियस लाइबिलिटी वाला, टॉर्ट वाला सूट फाइल कर दिया है फॉर डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन. एंड हेंस यहाँ पे प्लेंटिफ कौन बन जाता है? बी बन जाता है, और डिफेंडेंट कौन बन जाता है? ए बन जाता है. ओके, देयर मस्ट बी वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर दैट prosecution, and the defendant must have acted maliciously. Defendant must have acted maliciously. यहाँ पे कौन डिफेंडेंट बन गया? ए बन गया डिफेंडेंट. ए कौन बन गया? डिफेंडेंट. और बी कौन बन गया? प्लेंटिफ. ठीक है, जो फॉल्स प्रोसिक्यूशन था उसमें ए वॉज द प्लेंटिफ, बी वॉज द डिफेंडेंट. बी ने क्या कर दिया? खुद को डिफेंड कर दिया. अब डिफेंड करने के बाद में बी क्या कर रहा है? ए के ऊपर सूट फाइल कर दिया. तो इन दैट केस नाउ बी बिकम्स द प्लेंटिफ एंड ए बिकम्स द डिफेंडेंट. और जब जो डिफेंडेंट है ए, उसने क्या किया? उसने कैसा काम किया रहना चाहिए? मलिशियसली काम किया रहना चाहिए, with improper motive and not to further the end of the justice. The plaintiff must have suffered damages. ये जो malicious केस किया था ए ने बी के ऊपर, उसकी वजह से क्या हुआ? बी का रेपुटेशन में डैमेज हो गया, तो he has suffered some kind of damages. Okay, the prosecution must have terminated in favor of the plaintiff. बी जो है plaintiff है, तो जो false prosecution था वो क्या हो गया? उसमें बी के फेवर में वर्डिक्ट आ गया कि बी क्या है? इनोसेंट है. और ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है. इसके बिना आप सामने वाले पर्सन के ऊपर जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते हो? आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्शियस लाइबिलिटी वाला सूट नहीं कर सकते हो. ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, और एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो ये 5 पॉइंट्स आपको लिख के आना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नर्वस शॉक. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. नर्वस शॉक में एग्जांपल से पहले हम लोग समझ लेते हैं. ए नेग्लिजेंटली ड्रॉव द कैरेज ऑन टू ए रेलवे ट्रैक while the train was on the verge of crossing the place, and by this accident there was a lady received a nervous shock which leads to a bad impact on her health. A would be liable for damages for consequences of the nervous shock. तो ए ने क्या किया दिया? ए ने अपना गाड़ी लेके जा रहा था, सामने से ट्रेन भी आ रहा था, रेलवे ट्रैक से गाड़ी लेके जा रहा था, तब क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. वो एक्सीडेंट ए का हुआ. ओके, बट ये देख के नर्वस शॉक किसको हुआ? किसी एक लेडी को हुआ जो वहाँ पे खड़ी थी. उसने देख के उसको क्या हो गया? नर्वस शॉक हो गया, उसका हेल्थ हजार्ड हो गया, उसके लिए हेल्थ एम्पर हो गया उसका. एंड फॉर दैट शी कैन sue Mr. A for damages and for
tortious liability. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल नर्वस शॉक. चलो नर्वस शॉक का भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार. ए पर्सन में गेट फिजिकल इंजरी, इसमें फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट बाय स्टिक, बुलेट, स्वॉर्ड, बट मेयरली बाय नर्वस शॉक थ्रू विच ही हैज़ सीन और हर्ड. इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक्चुअली में इंजरी होना चाहिए, एक्चुअली में हेल्थ इम्पैक्ट होना चाहिए, इंजरी होना चाहिए या एक हेल्थ इम्पैक्ट होना चाहिए इस पर्टिकुलर नर्वस शॉक का, अदरवाइज इसमें डैमेजेस नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट नर्वस शॉक इज़ बेसिकली. नेक्स्ट कौन सा, डिफेमेशन. डिफेमेशन तो अपन ने बीएनएस में भी देखा हुआ है. तो डिफेमेशन बेसिकली क्या है, डिफेमेशन इज़ एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन. और डिफेमेशन में आप क्या कर देते हो, डिफेमेशन में आप कोई ना कोई एक स्टेटमेंट पब्लिश करते हो जो कि जिससे क्या होता है कि सामने वाला पर्सन के बारे में आप कुछ तो बोलते हो जो कि सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. नॉर्मली ये कैसा होता है, झूठ होता है डिफेमेशन. सामने वाले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन को डिफेंड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, आपने एक झूठा बयान दिया है जिसकी वजह से उसका रेपुटेशन क्या हो गया है, रेपुटेशन डैमेज हो गया है. तो अगर आपने ऐसे कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है जिससे कि उसका रेपुटेशन क्या हो गया, डैमेज हो गया, इन दैट केस ही कैन sue you फॉर डिफेमेशन एंड आस्क फॉर डैमेजेस और कॉम्पनसेशन. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफेमेशन इज अ पब्लिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर ए पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में क्या हो जाता है, जिसको मैंने डिफेम किया उसका नाम क्या हो जाता है, सोसाइटी में कम हो जाता है. ठीक है, विच टेंड्स टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन. तो सोसाइटी उसको क्या कर देगी, सोसाइटी उसको शन कर देगी या अवॉइड करेगी उस पर्सन को. डिफेमेशन में भी जैसे एक पर्सन को मैंने, पर्सन के बारे में मैंने पब्लिश कर दिया कि ये पर्सन क्या 420 है, ये पर्सन फ्रॉड करता है, बहुत सारे लोगों से इसने पैसे लिए हुए हैं और पैसे डुबाता है ये लोगों का, ऐसा बोल दिया. तो उस केस में क्या हो जाएगा, सोसाइटी का परसेप्शन जो है ना आपकी तरफ अलग हो जाएगा और सोसाइटी क्या करेगा, आपको अवॉइड करने का कोशिश करेगा. सो दिस इज नथिंग बट डिफेमेटरी पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय मी अगेंस्ट एनी अदर पर्सन. सो डिफेमेशन के भी दो टाइप है, एक होता है लिबल, एक होता है लिबल और दूसरा होता है स्लैंडर. ठीक है, लिबल जो है ना, जो भी रिटर्न फॉर्म में रहेगा, रिटर्न फॉर्म में किसी डॉक्यूमेंट में आप कर रहे हो. ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट में आप कर रहे हो या कोई पिक्चर आप क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो किसी पर्सन का, या कोई कैरिकेचर या कोई सिनेमा फिल्म, एफिजी, स्टैच्यू, रिकॉर्डेड वर्ड्स होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिबल. ठीक है, और स्लैंडर मतलब क्या है, स्लैंडर मतलब पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिएंट फॉर्म. ट्रांजिएंट फॉर्म मतलब क्या, जो टेम्पररी फॉर्म में है, टेम्पररी नेचर में है. ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ बोल दिया मतलब क्या, स्पोकन वर्ड्स, और क्या कोई जेस्चर किया आपके बारे में, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसको स्लैंडर करके लिया जाएगा. अब जो लिबल है, लिबल के लिए पनिशमेंट या कॉम्पेंसेशन ज़्यादा होगा, स्लैंडर के लिए ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि लिबल में क्या कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आप पब्लिश कर रहे हो, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक परमानेंट फॉर्म में, एंड उसका जो डैमेज होगा वो कहीं ज़्यादा होगा देन दी स्लैंडर. बट दोनों में भी पनिशमेंट दिया जाएगा. द पनिशमेंट फॉर लिबल इज मोर सीवियर देन दी स्लैंडर. डिफेमेशन इज अ टॉर्ट एज वेल एज अ क्राइम इन इंडिया. तो क्राइम में भी आप डिफेमेशन ले सकते हो और टॉर्ट में भी आप डिफेमेशन के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो डैमेजेस के लिए. ओके, सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस में कवर होता है, रिकग्नाइजेस बोथ लिबल एंड स्लैंडर एज एन ऑफेंस. ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया है. ओके, नेक्स्ट कौन सा, नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस मतलब क्या है, नेग्लिजेंस मीन्स इनएडवर्टेंस और केयरलेसनेस. तो कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जो केयरलेसनेस की वजह से करता है, इनएडवर्टेंस की वजह से करता है, हैज़ फेल्ड टू एक्ट इन अ रीजनेबल मैनर. सो नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी. किसी का लीगल ड्यूटी था और उस पर उसने क्या कर दिया, उसने उसमें नेग्लिजेंस कर दिया. तो टेक केयर ऑफ विच रिजल्ट्स इनटू डैमेज अनडिसाइड बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ, देन इन दैट केस उसको क्या करके मान लेंगे हम लोग, नेग्लिजेंस करके मान लेंगे. और नेग्लिजेंस के लिए जो है ना, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपको रिलीफ या रेमेडी दिया गया है फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन दैट इज required. So the Consumer Protection Act has also been developed and provides for unliquidated damage in cases of नेग्लिजेंस. अभी नेग्लिजेंस में ज़्यादा करके आप देखो, मेडिकल नेग्लिजेंस आपको ज़्यादा करके पता रहेगा. कोई सर्जन है जो सर्जरी करते समय क्या कर दिया, नेग्लिजेंस कर दिया, जिसकी वजह से सामने वाले जो पेशेंट था उसको क्या हो गया, एक्स्ट्रा इंजरी हो गया या एक्स्ट्रा डैमेज हो गया उसको. तो इन दैट केस वो भी नेग्लिजेंस के पार्लेंस में आएगा और उसको टॉर्ट करके भी आप कर सकते हो या आप उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू भी आप जा सकते हो. ठीक है, फॉलोइंग द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP Shanta and others services rendered by
medical practitioners were brought under the ambit of section 2 clause 1 subclause O of the Consumer Protection Act 1986. Medical treatment was to be considered to be service and accordingly medical practitioners could be liable for deficiency of service. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस को आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, तो आपको डैमेजेस या कंपनसेशन वहाँ पे अवार्ड हो सकता है. ओके तो मेडिकल जो नेग्लिजेंस वाला केसेस है वो सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इंक्लूड कर दिया गया है. ओके एक और केस लॉ यहाँ पे है, वो है पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल. यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कंडीशन. एक है कि जो आपका लीगल ड्यूटी था, ठीक है, लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर होना चाहिए. सेकंड है ये लीगल ड्यूटी का क्या कर दिया आपने, ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दिया. और लास्ट में उसके लिए आपको क्या हो गया, डैमेजेस हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज हो गया. ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स, ये केस लॉ आपको याद रखना चाहिए. इसके लिए पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल. इसमें क्या दिया है, एक दिया है कि एक लीगल ड्यूटी होना चाहिए, वो लीगल ड्यूटी का क्या हो गया, ब्रीच हो गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, डैमेजेस हो गया. अगर ये तीनों चीज़ मिल गया तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कि वो एक नेग्लिजेंस वाला केस है, नेग्लिजेंस वाला फिट केस है. क्लियर है. तो यही केस लॉ यहाँ पे दिया हुआ है. गो थ्रू इट एंड मार्किंग इट आउट एज एंड होमवर्क. ठीक है. अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी और कंपनी इन टॉर्ट्स, लेट अस गो थ्रू द रेमेडीज ऑफ टॉर्ट्स फर्स्ट. अभी हमने किया टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स कर लिया हमने, अभी लगभग 8 टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स थे वो हमने कर लिया. और वो टॉर्ट के अभी रेमेडीज़ क्या क्या है, दो टाइप के रेमेडीज़, 2 कैटेगरी के रेमेडीज़ यहाँ पे बोला गया है. एक है जुडिशियल रेमेडी और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी. जुडिशियल रेमेडी मतलब क्या, जो कि अपने को कौन देता है, कोर्ट ऑफ लॉ देता है, कोर्ट्स देता है. ठीक है. और एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब क्या है, आउट ऑफ कोर्ट. ठीक है. तो पहले जुडिशियल रेमेडी में हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, 3 टाइप का रेमेडी आपको मिल सकता है जुडिशियल रेमेडी में. पहला वाला कौन सा है, डैमेजेस है. सेकंड है इंजंक्शन है. और थर्ड है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन. अभी डैमेजेस में बेसिकली क्या होता है, डैमेजेस में आपको जो भी लॉस हुआ, डायरेक्ट लॉस हुआ, उसका आपको क्या मिलेगा, डैमेजेस करके आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा. लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये सिर्फ कौन सा मिलेगा, डायरेक्टली जो आपको रिजल्ट हुआ है वही मिलेगा. उस पर्टिकुलर डैमेज की वजह से अगर आपको कोई इनडायरेक्ट डैमेज कल को हो रहा है तो वो आपको कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा. प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना कि ओनली दोज डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड विच आर डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ द defendant. Only those damages can be recovered which are directly the result of the act of the defendant. It is based on the legal maxim in jure non remota causa sed proxima spectator, which means law considers the direct or immediate cause and not the remote one. Okay, damages. ठीक है, ये डैमेजेस वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है हमारा. नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट वाला पार्ट है इंजंक्शन. इंजंक्शन मतलब क्या, हम कोर्ट के पास अप्लाई करेंगे कि कोर्ट आप क्या करो, आप इसको ऑनरेबल कोर्ट आप क्या करो, आप उसको एक ऑर्डर पास करो कि वो ये चीज़ क्या करे, ना करे, इसको रिस्ट्रेन करे फ्रॉम डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट विच एवर ही वॉज गोइंग टू डू. तो किसी पर्सन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको कोर्ट की तरफ से हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसा नहीं करना है तुमको, या उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं हम किसी चीज़ को करने के लिए, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजंक्शन बोलेंगे. सो इंजंक्शन इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रीडायरेक्टिंग कमीशन, ओमिशन और अमेंडमेंट्स टू एन एक्ट. इट ऑर्डर्स ए पर्सन टू डू एन एक्ट, नॉट टू डू एन एक्ट और करेक्ट हिज रॉन्गफुल एक्ट. डू एन एक्ट, नॉट टू डू एन एक्ट और करेक्ट हिज रॉन्गफुल एक्ट. इट इज़ डन एंटायरली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट का डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है. इट कैन बी प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी, इंटरिम और परपेचुअल इन नेचर. ठीक है. ये सीपीसी में ऑलरेडी इसको टेम्पररी इंजंक्शन करके कवर किया हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी इसको कवर किया जाता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया है अपने को इंजंक्शन के बारे में. अब थर्ड वाला क्या था, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. ना व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, किसी पर्सन ने समझो रॉन्गफुल पोजीशन ले लिया है मेरे प्रॉपर्टी का, इन दैट केस मुझे क्या मिल सकता है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब वापस करना, वापस मेरे पास उसका पोजीशन लेना, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक
restitution. The third kind of judicial remedy in which the court may direct, ये सब कौन सा है? फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं ये कौन सा जुडिशियल रेमेडीज जो हमको कोर्ट से मिल रही है. इंजंक्शन कहाँ से मिल रही है हमको? कोर्ट से मिल रही है. डैमेजेस का कॉम्पनसेशन हमको कहाँ से मिल रहा है? कोर्ट से मिल रही है. और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन हमको कहाँ से मिल रहा है? कोर्ट से मिल रही है. सो एनी ब्रीच ऑफ राइट्स, कोर्ट में डायरेक्ट फॉर इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ राइट्स. रेस्टिट्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द प्रॉपर्टी, वापस कर देना प्रॉपर्टी को. आपने क्या कर दिया? रॉन्गफुली होल्ड किया, राइटफुल ओनर को क्या कर दो? वापस कर दो. ऐसे कौन ऑर्डर पास कर रहा है? कोर्ट पास कर रहा है. ठीक है, टू इट्स राइटफुल ओनर. ए पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रेस्टिट्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी व्हेन इट इज अनफेयरली टेकन अवे फ्रॉम हिम. रॉन्गफुली डिस्पोजिशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी इन्वोक्स दिस रेमेडी. सो आई होप कि आपको ये तीनों भी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गया रहेगा. डैमेजेस से लेकर स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन आपको समझ में आ चुका है. ओके, अब नेक्स्ट जो पाँच है वो कौन सा? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में क्या है? एक तो सेल्फ डिफेंस है, जहाँ पे पर्सन खुद को क्या कर सकता है? बचाने के लिए, खुद के डिफेंस के लिए वो क्या कर सकता है? रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकता है, रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास. प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास अपन ने ऑलरेडी बात किया है. कोई पर्सन अगर मेरे प्रॉपर्टी पे जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको रीजनेबल फोर्स यूज़ करके उसको यहाँ से ट्रेसपास होने से उसको रोक सकता हूँ, या उसको अगर वो आ चुका है तो उसको बाहर निकाल सकता हूँ, इजेक्ट देम, बट द फोर्स शुड बी रीजनेबल फॉर दी पर्पस. री एंट्री ऑन लैंड. कोई किसी ने पर्सन ने मेरा क्या कर दिया? मेरा प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा? मैं मेरे लैंड के ऊपर री एंट्री कर दूंगा. मेरे को बाहर निकाल दिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ? री एंट्री कर रहा हूँ. ये सब केसेस में मुझे कोर्ट के पास जाने का जरूरत नहीं. कोर्ट के अलावा भी मैं ये स्टेप्स ले सकता हूँ. इसको लॉफुल जस्टिफिकेशन में इसको काउंट किया जाएगा. ओके, सो ये हो गया री एंट्री ऑफ लैंड. नेक्स्ट कौन सा? रिकैप्शन ऑफ गुड्स. रिकैप्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या? अगेन सेम, इट इज़ नीदर अ क्राइम नॉर ए टॉर्ट ऑफ अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द चैटल टू टेक इट ईदर पीसफुली और बाय यूज़ ऑफ रीजनेबल फोर्स. मतलब जो मेरा राइटफुल चैटल है उसका मैं क्या कर सकता हूँ? उसका मैं पीसफुली मेरा पोजीशन वापस ले सकता हूँ, मेरे पास ले सकता हूँ विथ रीजनेबल फोर्स. ठीक है, फ्रॉम वन हु हैज़ रॉन्गली टेकन इट और रॉन्गफुली डिटेन्ड इट. तो ये था री एंट्री ऑफ लैंड. ये क्या है? रिकैप्शन ऑफ गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मतलब क्या? यहाँ पे एक केस स्टडी, केस लॉ काफ़ी फेमस है, जहाँ पे क्या होता है कि मेरे घर से एक पर्टिकुलर झाड़ है समझो. ठीक है, एक ट्री है, ट्री के जो ब्रांचेस है वो मेरे नेबरिंग घर पे जा रहे हैं अंदर की तरफ, उनके प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर दिया है वो. ठीक है, एंड दैट इज़ कॉजिंग न्यूसेंस टू हिम. तो वो जो मेरा नेबर है, नेबर ने मुझे 2-3 बार क्या कर दिया? वार्निंग भी दिया कि ये काट दो क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है? इनकन्वीनियंस फील हो रहा है. तो लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया. तो मेरा नेबर क्या कर सकता है उस केस में? उसमें मेरा नेबर जितना पार्ट उसके प्रॉपर्टी पे आ रहा था उतने पार्ट को वो क्या कर सकता है? कट कर सकता है. बट इनिशियली उसने क्या दिया रहना चाहिए? वार्निंग दिया रहना चाहिए. दैट इज़ अ कंडीशन ओवर हियर. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. Okay, the occupier of the land may lawfully abate any nuisance injuriously affecting it. He may cut overhanging branches as spreading roots from the neighbor's trees, but upon giving notice, इसके देखो पॉइंट्स क्या है, कंडीशंस क्या है? पहले तो नोटिस दिया रहना चाहिए. बाय चूजिंग द लीस्ट मिस्चीवियस मेथड, सबसे कम मिस्चीवियस मेथड से उसको काटना पड़ेगा जिससे कि कुछ नुकसान ओवरऑल ना हो. अवॉइडिंग अननेसेसरी डैमेज. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिख के आना पड़ेगा. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस समझ में आ चुका है आपको. ओके, लास्ट वाला कौन सा? डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट किसके रिलेटिंग है? रिलेटिंग टू कैटल एंड चैटल. ठीक है, कैटल मतलब भेड़ बकरी और आपका गाय वगैरह के बारे में बात कर रहा है. ऑक्यूपायर में लॉफुली सीज कैटल और एनी चैटल विच आर अनलॉफुली ऑन हिज लैंड ड्यूरिंग डैमेज देयर ऑन. तो कोई किसी का भेड़ बकरी या गाय जो है वो मेरे प्रॉपर्टी पे आया, मेरे प्रॉपर्टी आके क्या कर दिया? डैमेज कॉज कर दिया. तो इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ? उनको मैं अपने आई कैन सीज देम. ओके, आई कैन सीज देम इन माई कस्टडी टिल द डैमेजेस हैव नॉट बीन पेड बाय द ओनर ऑफ द कैटल और चैटल. तो दैट इज डिस्ट्रेस डैमेज फीसेड. तो ये हो गया सारे रेमेडीज़ कौन से टाइप के थे? 2 टाइप के थे, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल. जुडिशियल में कितने थे? जुडिशियल में 3 थे. 3 कौन से थे? डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक, रेस्टिट्यूशन. फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल में कितने हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल में कौन सा है? सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, और कौन सा था? अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, एंड लास्ट में कौन सा? डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट. ठीक है,
तो ये सारे क्लियर हो रहे हैं, रेमेडीज़ भी क्लियर हो गए, टॉर्ट्स भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेट एंटिटी या कंपनी का टॉर्ट में क्या लाइबिलिटी है। ठीक है, कंपनीज आर नॉट नेचुरल पर्सन्स, देयरफॉर लाइबिलिटी हैज़ टू बी फास्टेंड आफ्टर कंसिडरिंग द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. In general, the companies are responsible for the wrongs committed by the employees. The liabilities of the companies are fastened on the basis of the principle of legal maxim Q facet alium facet per se. Q facet alium facet per se, ये हमने प्रिंसिपल और एजेंट केस में भी देखा था, जिसमें क्या बोला था, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स थ्रू हिमसेल्फ. मतलब यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, अगर अपने मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू काम कर रही है, कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू काम कर रही है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी ने कोई अगर क्या कमिट किया है, टॉर्ट कमिट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑथराइज्ड वर्क, देन इन दैट केस द कॉर्पोरेट एंटिटी और कंपनी के ऊपर भी क्या हो जाएगा, टॉर्शियस लाइबिलिटी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा. इसको भी हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग वाइकेरियस लाइबिलिटी में कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. इसमें एक बहुत ही फेमस वाला केस है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें जो आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी पता रहेगा 1984 में जो हुआ था, 2 और 3 दिसंबर 1984, देयर अकर्ड एट भोपाल इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश in India, the worst and the most tragic industrial disaster known to mankind. There was a massive escape of night noxious and सब सोए हुए थे, तभी क्या हो गया, ये केमिकल्स रिलीज हो जाता है वहाँ से. एन abnormally dangerous gas called methyl isocyanate, hereinafter called as MIC. Thousands of persons sustained serious and permanent injuries, including acute respiratory distress syndrome, ocular, gastrointestinal injuries and pain, suffering and mental distress. Court upheld that no fault liability or absolute liability rule. Court stated that when an enterprise is engaged in a hazardous or, या याद है हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला किया था, वहाँ पे यही बोला था कि कोई अगर हजार्डस सब्सटेंस यूज़ करता है तो जो पर्सन यूज़ कर रहा है अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, एट इज ओन पेरिल उसको यूज़ कर रहा है, एंड ही हैज़ टू इंश्योर दैट कि आजू बाजू के जो लोग हैं या जो एनवायरनमेंट है उसको कहीं से भी कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी लीकेज ना हो उसके सब्सटेंस का. अगर हो जाता है तो इन दैट केस देयर इज़ नो इफ्स बट्स नो एक्सेप्शंस, कंप्लीट लायबिलिटी विल बी ऑन दी कंपनी विच इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ एन एक्ट. ओके, तो यही यहाँ पे दिया, वेर एन एंटरप्राइज इज एंगेज इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी एंड harm results to anyone on account of an accident in the operation of the hazardous or inherently dangerous activity resulting from example in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable. क्या है enterprise, क्या है strictly and absolutely liable to compensate to all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any exception. जैसे मैंने कहा था absolute liability में कोई भी exception नहीं माना जाएगा, which operates vis-a-vis the tortious principle of strict liability under the rule of Rylands versus Fletcher. तो ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसको ज़रूर पढ़ के जाना है. ओके, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल पूरा कंप्लीट. एक बाकी रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द टॉर्ट के बारे में. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी काफ़ी सारे डैमेजेस के लिए क्या किया है, रेमेडी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस वगैरह रहेगा. तो यहाँ पे एक केस लॉ दिया है उसके बारे में, वो केस लॉ पढ़ के जाना है हम लोग को. ब्रांच मैनेजर इंडिगो एयरलाइंस एंड अनदर वर्सेस कल्पना, रानी, डेबर्मा एंड अदर्स. ठीक है, दिस इज द केस लॉ का नेम. ये इंडिगो एयरलाइंस का केस लॉ याद रखिए. इसमें क्या होता है, एक फैमिली होता है जो कि कोलकाता से अगरतला ट्रैवल करने वाला होता है, और उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस का टिकट्स लिया हुआ है, फ़्लाइट टिकट्स लिया हुआ है. अब होता ये है कि उन लोग काफ़ी टाइम पहले कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन उन लोग का बोर्डिंग नहीं हो पाता है. अब एयरलाइंस ये केस में क्या करती है कि उनको बोर्ड तो नहीं किया, फ़्लाइट तो चला गया, लेकिन ताकि वो लोग क्या नहीं करें, कोई केस नहीं करे, कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट करे, तो उन लोग क्या करते हैं, फोर्सिबली उन लोग का बोर्डिंग पास भी उन लोग छीन लेता है. ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग इसमें क्या दिया है. बोर्डिंग passes were issued to the complainants. The airlines left the complainants at the Kolkata airport without informing them, despite all the complaints being the airport
premises. A written complaint was lodged at the Indigo office at Kolkata airport, but the office staff as well as the airport staff at the counter did not accept the complaint application and forcibly snatched the बोर्डिंग पासेस. तो कंप्लेंट एप्लीकेशन उनका एक्सेप्ट भी नहीं किया और क्या कर लिया, बोर्डिंग पासेस भी उनका छीन लिया. फर्दर डिड नॉट पे हीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ मेकिंग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी नहीं करके दिया कि भाई नेक्स्ट फ्लाइट में तुमको पहुंचा देंगे. या दे वर कम्प्लीटली रूड एंड एरोगेंट अबाउट दिस मैटर. दी कंप्लेनेंट अप्रोच दी डिस्ट्रिक्ट फोरम. कंप्लेनेंट ने किधर किया, डिस्ट्रिक्ट फोरम किसका है, कंज्यूमर कोर्ट का है. ओके, एंड वॉज अवॉर्डेड विद द कॉम्पनसेशन. द स्टेट फोरम ऑल्सो एनाउंस द कॉम्पनसेशन. तो जब वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या कर दिया, कॉम्पनसेशन दिया. डिस्ट्रिक्ट फोरम से इंडिगो एयरलाइंस क्या कर दिया, अपील किया टू द स्टेट फोरम. स्टेट फोरम ने क्या कर दिया, और भी ज़्यादा बड़ा के कॉम्पनसेशन दे दिया, एनाउंस कॉम्पनसेशन दे दिया. Aggrieved by the decision, the Indigo Airlines filed the revision petition contending that the airport manager had stated that there were many announcements at regular intervals and that the Indigo Airlines is not responsible for the passengers did not report at the gate on time. जबकि जो कंप्लेनेंट है उसका कहना ये है कि उन लोग काफ़ी देर पहले से वहाँ पे पहुँचे थे, उनको बोर्डिंग पास भी इशू किया था लेकिन उनको अनाउंसमेंट किया ही नहीं है. The NCDRC held that the Indigo Airlines not only forcibly taking the boarding passes from the complainants, no effort was made by the airline to compensate them by arranging for their travel in the next scheduled flight to Agartala. It is not in dispute that the complainants were put for a lot of mental agony and inconvenience. They had to stay in a hotel for 2 days. The NCDRC dismissed the revision petition with the cost of 20,000 to be paid to the कंप्लेनेंट्स. तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब जो कॉम्पनसेशन मिला तो मिला और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी यहाँ पे दे दिया. सो ये जो रिवीजन पिटीशन था इंडिगो एयरलाइंस का, उसको क्या कर दिया, नेशनल कमीशन ने उसको डिसमिस कर दिया यहाँ पे. ठीक है, ये क्लियर है. सो दिस वाज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम द इंडिगो एयरलाइंस इन द, यू कैन कॉल इट एज डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस ऑल्सो. ठीक है, यहीं पे एक और केस लॉ है जो कि है बोलिथो वर्सेस सिटी एंड हैकनी हेल्थ अथॉरिटी. यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है. मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके क्या पॉइंट दिया, फैक्टर्स जिसको मेडिकल नेग्लिजेंस करके माना जाएगा. वेयर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टेड एज पर द प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो काम किया है क्या वो एक्सेप्टेड है कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर के बीच में. इफ़ नो, द डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म कैन बी जस्टिफाइड एज बीइंग रीजनेबल. हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से नहीं किया हो, वो रीज़न जस्टिफाइड होना चाहिए और वो रीज़न बताना चाहिए. इट मस्ट बी नोटेड दैट लायबिलिटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज 3-fold. तीन तरीके की लायबिलिटी होते हैं. एक होता है टॉर्ट में होता है, एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में होता है और एक क्रिमिनल केस भी उसके ऊपर बन सकता है. ठीक है, लायबिलिटी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ डैमेजेस, सिविल लायबिलिटी फॉर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर BNS. और 3-fold हो सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में. अगर एग्जाम में मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख के आना. और केस का नाम क्या है, बोलिथो वर्सेस सिटी हैकने हेल्थ अथॉरिटी करके केस का नाम है. और ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको. पहला पॉइंट क्या बोलता है, वेदर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टेड एज ए प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, अगर नहीं किया तो उसका डिविएशन का रीज़न क्या है, वो रीज़न शुड बी जस्टिफाइड. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वाज इन द चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. तो मैंने लगभग पूरा का पूरा मॉड्यूल 100% कवर कर दिया है लगभग, और सारे केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है. जस्ट गो थ्रू इट, रिवाइज इट वंस नाइसली, एंड आई थिंक यू शुड बी डन विद दिस पर्टिकुलर chapter. Okay, so that's it from me in this video. I hope if this series of law of tort has been useful for you, then do share these videos with your friends and like these videos and subscribe to the channel for many more such content coming soon your way. Okay, bye.